السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چلانے والے ہیں، اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ سارے انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ ہر جمعے کو صدیق اکبر کرتا رہتا ہے۔ میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ابو بکر فرماتے رہے۔ اور ان کے نام میں تجھے تو تب مزہ آئے نا جب تجھے نبی سے پیار ہو، تو نبی کے پیاروں سے بھی پیار ہوگا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں اولیاء اکرام کے سردار، مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو۔ یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا۔ کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے۔ مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے۔ جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ وہ دیکھنے والوں، یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔ خلافت کا دور ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ اکرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا، تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے، کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلم
यतीमन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। यतीम का माल खाना ऐसा है जैसा अपने पेट में अंगारे भर लेना। कौन पूछे, क्यों पूछा जाए? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन घरवाली से पूछा, मैं बादशाह ठीक हूँ, अमीरुल मोमिनीन भी हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन भी हूँ, नबी के मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मुसलमानों का बादशाह हूँ, पर मेरे घर में मीठा खाना पकने की ताकत नहीं। कहां से आ गया ये? आजकल तो मजदूर जहां काम करता है 10 रुपए का काम करता है तो 20 रुपए का नुकसान करके आता है जानबूझकर। यह हरामखोरी नहीं? वहीं से बच्चे पालना, वहीं से अपना पेट पालना और वहीं मालिक का नुकसान करना। फिर सारी दुनिया को शिकायत है जी बरकत नहीं रही, रहमत नहीं रही, सुकून नहीं रहा, नई नई बीमारियां आ गई। अरे जब पेट में हर वक्त सूअर जाएगा तो हराम के बीमारियां कैसे नहीं पैदा होंगी? कभी उसका हक पेट में जा रहा है, कभी उसका हक गया, कभी उसका माल गया, कभी ये हुआ, सुकून कैसे आएगा? ये नबी का ससुर सिद्दीक अकबर, नबी का पहला खलीफा, नबी का जानशीन, मस्जिद नबवी का इमाम, घरवाली से बादशाह होते हुए पूछता है, मेरे घर में मीठा खाना पकने के पैसे नहीं, ताकत नहीं, तू कहां से लाई? ने कहा, हजरते बच्चे कई दिन से कहते थे अम्मी मीठा तो खाना पका दे एक दिन। अम्मी मैंने थोड़ा थोड़ी आटे की चुटकी रोज बचाई, कई दिन मैंने आटा बचाया, गुजारा किया, वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ, उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे,
तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए आला है ना ये ताक के डाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा अच्छा 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 बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगे हो जब भी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इज़िन लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं जो लोगों का ख्याल है, दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज किया अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए,
फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है। दुनिया क्या कहेगी, वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। पर दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक़ अकबर, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हजरत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान, जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना, पहनना तो दरकिनार, हाथ लगाने को तैयार नहीं, घर में रखने को तैयार नहीं, यूं लकड़ी से उठाकर परे परे फेंकते हैं, आग लगाते हैं, नहलाने वाले को दे देते हैं, वो भी नहीं पहनता, यूं ही गलियों में नालियों में फेंक जाता है। न तेरा बाप मरा, जब तुझे नफरत है कपड़ों से, मुर्दा नवाने वाले का वो मामा लगता है, वो क्यों पहने? अर्ज करने का मकसद ये कि इन हजरात की जिंदगी तो देखो। और वफात शरीफ से पहले 2.5 बरस जो वजीफा लिया, जो तनख्वाह ली सरकारी खजाने से, खैबर की जमीन बेचकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.5 बरस की तनख्वाह का हिसाब करके वो सारी तनख्वाह जो ली थी बैतुल माल में वापस दाखिल करके फिर दुनिया से रुखसत हुए। जो तनख्वाह ली थी 2-2.5 साल में वो सारी की सारी वापस कर दी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि मैं मुसलमानों का पैसा खा के नहीं मरना चाहता, चाहे तनख्वाह के तौर पर था, कल क़यामत में मेरे लिए रुकावट ना बन जाए। आज मुझे और आपको तो ये तलाश भी नहीं कि अपना हलाल के पैसों से कफन तो बना के रख ले। एयर कंडीशन का हर वक्त जिक्र है, घर में होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, पक्खे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कार होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कभी घर में ये जिक्र भी हुआ कि हलाल का कफन भी होना चाहिए? वो किधर से आएगा? उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? कौन हमने घर में पैदा कर रखा है जो उस वक्त ये बात देखकर कफन लाएगा? इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, लोगों अपना सब कुछ पाक साफ बन के दुनिया से जाओ, अपना बदन भी पाक हो, अमल भी पाक हो, पेट भी पाक हो, कफन भी पाक हो। इन सारी मैं वो बात करता हूं जिससे न देवबंदी बचे न बरेलवी बचे
न शिया बचे न सुन्नी बचे, मौत का झटका तो सबको लगना है ना। और ऐसा लगता है लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तनख्वाह जो ली थी सारी जिंदगी में, वो भी बैतुल माल में वापस कर दी और तमाम के तमाम लोगों के हुकूक चुका दिए। बाकी जो बात रही वो सीधी सीधी कमतर मरहूम कहता है, आजा सिद्दीक दा इस्लाम थे कर्जा बकाया है, आजा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, जिता जिस दे हाथों उस आखिरी जामिन दसाया है, वसूली दा ना चिंता न लिखवाया सहाबा ने। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार, नबी का यार, नबी का वफादार, हर वक्त का साथी इसी गम में रहता है। और वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना, और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे आयशा के सामने ले जाना, तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़ अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर ना करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे,
मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सिराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के बमै सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है। ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ गर्क हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक के अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा, आप कहाँ से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके, कोठड़ी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। वो खुद बयान करता है कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर रो पड़ा, काली कमली वाले तेरे यार की तारीफ की, मेरी जुबान कट गई। रियाजुल जन्ना में बैठ कर रोता रहा, दुआ करता रहा, और वो जो जुबान काट के अलग की थी वो भी उसके हाथ पे रख दी थी उस काटने वाले ने। कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई, गलूदगी सी तारी हो गई, तो मुझे फौरन हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दीदार हुआ। फरमाया क्यों रोता है? ये कटी हुई जुबान मुझे पकड़ा, मैंने हजरत के हाथ पे रख दी, आपने मेरे मुंह में रखकर फूंक मार दी। फरमाया अल्लाह ठीक कर देगा। वो कहता है मेरी थोड़ी सी आंख खुली, जुबान बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बिल्कुल सही तंदुरुस्त मेरी जुबान हो गई। लगा मुझे तो और भी ज्यादा लुत्फ आने लगा। अब मैं हर वक्त कभी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, कभी फारूक आजम के मौजा शरीफ के सामने खड़ा हूँ, कभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ। एक और आदमी आया और कहने लगा कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, मेरे यहाँ खाना खाने चलो, बरकत हो जाएगी आपके कदमों से, आपकी दुआ से। वो अल्लाह वाला कहता है कि मैंने तो सोचा कि वही होगा तो ठीक है, फिर कटवाऊंगा, सिद्दीक के नाम पर जुबान फिर कटाऊंगा, फिर मजा आएगा। लगा मैं उसके साथ चला गया। जिस वक्त मुझे उस मकान में, वो उसी मकान में लेके गया, मैं समझ गया कि आज फिर वही वक्त आ गया। लेकिन मुझे वो मकान में खड़ा करके कहने लगा, क्या पहले भी आप इस मकान में तशरीफ लाए हैं? कि जी हाँ। कि मेरे वालिद लाए थे आपको? कि जी हाँ। कि जरा दुआ कर दो, उनका हाल उसी दिन से बदल गया था। यूं लिखा किताबों में, उसने वही कमरा हुजरा खोला जिसमें जुबान काटी थी, और उस अल्लाह वाले को बेटे ने दिखाया कि इसकी उसी दिन से सूअर की शक्ल बनी हुई है। जंजीरों में बांध रखा मैंने, अंदर ही अंदर मेरी बदनामगी होगी। अल्लाह वाले जुबान तेरी काटी, बाप मेरा तबाह हो गया। मैं ये कहता हूं कि आप लोग व्यवहार से समझते हैं इनको।
जो चाहता है वो सिद्दीक को बकवास करता है, जो चाहता है वो फारूक को बकवास करता है। और ये बेवार से नहीं, इनके वारिस ने तो इनको अपने पास ही सुलाया हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमा दिया, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, ये वो सिद्दीक अकबर है, ये वो अल्लाह वाला है जिसको नबी से बड़ा प्यार है, नबी को इससे बड़ा प्यार है, परवरदिगार आलम को भी इससे बड़ा प्यार है। इसने अपना सब कुछ मेरे महबूब की ज़ाती घरामी पे कुर्बान कर दिया। इज्जत को इज्जत ना समझा, सरदारी को सरदारी ना समझा, तमाम का तमाम अपना किरदार क्या, आमाल क्या, अकवाल क्या, फाल क्या, माल क्या, औलाद क्या, तमाम का तमाम आका की ज़ात पे कुर्बान कर दिया। ये तो इतना गैरत वाला घराना है, ये तो इतना शर्म वाला घराना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, मैंने एक ख्वाब देखा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही। आसमान से चांद उतरा और मेरे हुजरे में आ गया। फिर दूसरी मर्तबा चांद आसमान से उतरा, फिर मेरे हुजरे में आके छुप गया। फिर तीसरी मर्तबा चांद उतरा, मेरे हुजरे में आके छुप गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका मैंने ये ख्वाब देखा है। फरमाया, ताबीर इस शर्त पे बताऊंगा कि मेरे होते हुए मेरी हयात में किसी को नहीं बताओगी। फरमाया, मैं नहीं बताऊंगी। हुजूर ने फरमाया, आयशा ये तेरा हुजरा है, पहला चांद इसमें मैं आऊंगा, दूसरा चांद अबू बकर आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम यही आएगा। हदीस की सारी किताबों में मौजूद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर आयशा सिद्दीका ना होती दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। ये तो दीन को कामिल करने वाला घराना है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, दोनों कहते हैं जितना इल्म सारी उम्मत को मिला, इतना इल्म अकेला हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका को मिला। सारे सहाबा मसाइल पूछने के लिए आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे आया करते थे। खुद हुजूर ने जो फरमा दिया, आयशा के बगैर दीन कामिल नहीं, आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता, आधा दीन आयशा से पूरा हुआ। तुम तो इतना भी प्यार नहीं करते कि अपनी बेटियों के नाम ही नबी की घरवालियों के नामों पे रखो, नबी की बेटियों के नामों पे रखो। फिल्मी कंजरियों के नाम तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, अल्लाह नीतों को देख नहीं रहा। खानम, फलानी खानम, और फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो दम खम होती है फिर रोते फिरते हैं, पता नहीं यार कहाँ चलेगी, कॉलेज गई थी मुड़ के आई नहीं, कैसे आए। ये जो जुलूस बलूस निकालती फिरती है ना, इनमें एक भी मुसलमान घर की औरत नहीं है। तहकीक करके देखो, या यहूदियों की नस्ल मिलेगी या ईसाइयों की नस्ल मिलेगी। मुसलमान औरत हो या मर्द हो, वो ये थोड़ी कह सकते कि हम नहीं इस्लाम को मानते, हम नहीं ईमान को मानते, हम नहीं कुरान को मानते। और तुमने माना कब था? तुम तो वो बेईमान हो जिन्होंने अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाट चाट कर मुसलमानों से गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ वफादारी की। ये जो तुम्हें बड़े बड़े नजर आते हैं ना, बंगले के जागीर कोठियां, ये सारे मुसलमान और कुरान के गद्दार हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो कि जो तनख्वाह मामूली सी ली, इतनी ली कि जिसमें मीठा दलिया भी ना पक सके, वो भी वापस बैतुल माल में दाखिल करके दुनिया से रुखसत हुए। ये तो ऐसे तकवे के मालिक थे सहाबा इकराम। तो सैयदना फारूक आजम सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यूं पोता पास खड़ा है, हजरत उमर का पोता,
आवाज जो दी पोते को तो ऐसा बोला जैसे बच्चे के मुंह में कोई चीज हो। दादा ने पूछा, बेटा मुंह में क्या है? आखिर दादा पैसा। मैंने कहा पैसा कहां से ले आया? कि अबू मूसा अशरी ने दिया, रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी है, बैतुल माल का मुहाफिज खजानची समझो, क्या अबू मूसा ने दिया? देखी निकाल कर चुवन्नी थी। अब बताओ क्या गजब हो गया इसमें, क्या तूफान टूट गया था, क्या आसमान टूट गया था। अगर तनखा खजाने के मुहाफिज ने, खजाने वाले ने अमीरुल मोमिनीन के पोते के हाथ पे चुन्नी रख दी तो क्या हो गया। फारूक आजम ने अबू मूसा अशरी को तलब किया है, बुलाया है, फरमाया ये 4 आने कहां से लाया था? ये 4 आने कहां से लाया था? उन्होंने कहा जी खजाने की कोठड़ी में झाड़ू दी थी, कूड़ा कबाड़ मिट्टी जो बाहर निकाली उसमें से ये दिरहम चुन्नी निकल आई। बच्चा मेरे पास खड़ा था, मैंने हाथ पे रख दिया कि कोई शय खा लेगा, कोई चीज लेके खा लेगा, बच्चा है। तेरे वर्गा होंगे ना तो चाट मारे, अच्छा मेरे बाल को चुन्नी ने बनी आई, बेरा खजाना सारा तेरे प्यू दे। फारूक फरमाते दुर्रा उठा के लाओ। अबू मूसा अगर तू नबी का चहेता सहाबी ना होता, कोड़े मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ देता। और कौम के खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला, सरकारी खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला है। क्यों तूने ऐसा किया है? आज जिन पर तुम दफ्तरों में बैठकर कुर्सियों पे यूं चौड़े होकर बातें करते हैं, सहाबा के जमाने में यूं हुआ, सहाबा के जमाने में यूं हुआ, और ये तो वो लोग थे जिनके बारे में खुदा कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे हैं मैं इनका हूं। तुम अपना फिक्र करो। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें नाजिल हो सिद्दीक अकबर के मजार पे, फारूक आजम के मजार पे और सारे सहाबा के मजारात पर। ये बड़े ऊंची शान और ऊंची अजमतों वाले लोग थे। ये तो ये रहे, इनके गुलामों ने कमाल कर दिया, इनके मानने वालों ने हद कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो अंग्रेज के मुकाबले में लड़े, कि मेरा मकान भी अंग्रेजों ने छीन लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को गले से पकड़कर बाहर फेंक दिया, मेरी जमीन कुरक कर ली और मेरे पैरों में 20 शेर लोहा डाल दिया, और अंबाले से लेकर लाहौर तक घोड़ों को मारने वाली चाबुक मार मार के लाहौर लाया गया। इसके बाद फरमाते हैं कि हमें हुक्म मिला कि जाफर थनेसरी को फांसी दी जाएगी। फरमाते हैं जिस दिन वो वक्त आया, मैंने रात को अपने ही प्लाट में, इलाके में, जेल खाने में जो दरख्त पत्ते खड़े थे, मैंने रात को पत्ते चबा कर रोजे की नियत कर ली, कल मुझे फांसी आएगी, मैं अपने अल्लाह की हुजूर में रोजादार होके जाना चाहता हूं। फरमाते हैं बजाय फांसी के पकड़ के बाहर ले गए, इतना मारा, सारा दिन होश ना आया। अगली रात हो चुकी थी, जब मुझे होश आया, मैंने पलाट में से 2 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। यूं ही नहीं, और फिर फरमाते हैं मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार लगाए गए। ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था। चारों तरफ खार नाक कांटों वाले नोकदार पिंजरे के अंदर तार लगाए। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। फरमाते हैं मैं हर सांस में दरूद पाक पढ़ने लगा। तमन्ना थी आका तेरी जात पे दरूद पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया से चला जाऊं। फरमाया मैं पढ़ता रहा, मुझे खश आया, चक्कर आया, बेहोशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे इमामुल अंबिया का दीदार मिल गया।
उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत मिल गई, दीदार मिल गया आका का। किसी ने पूछा मौलाना जाफर थनेसरी से, फिर दिल में क्या बात आई? फरमाते हैं मेरे दिल में हर वक्त ये बात रहने लगी, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मैं हर वक्त इस तलाश में था, कब वो वक्त आए कब अपने दीन इस्लाम ईमान की वजह से मैं दुनिया से शहीद हो के जाऊं। ये गुलामों का हाल है, सिद्दीक के मानने वालों का हाल है, फारूक के मानने वालों का हाल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, उस्मान के मानने वालों का हाल है, अली मुर्तजा के मानने वालों का हाल है। अरे हम तो सारे सहाबा की अजमत करेंगे, अहले बैत का भी इकराम करेंगे, हमें कौन रोक टोक सकता है? सहाबा इकराम के मामलात में दखल अंदाजी ना करो। बड़ा अफसोस लगता है, जमीनों के वारिस मौजूद हैं, मकानों के वारिस मौजूद हैं, दुकानों के वारिस मौजूद हैं, कोठियों बंगलों के वारिस मौजूद हैं, बागों और बहारों और ट्यूबवेलों और मोटर गाड़ियों और तमाम चीजों के वारिस मौजूद हैं। ऐ काश आज अबू बकर के सिद्दीक के वारिस भी जिंदा होते, आज फारूक आजम के वारिस दुनिया में होते। किस शान से जिंदगी बसर की। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैंने एक बात जुमला कहा था कि ये घराना बड़ा गैरत वाला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहले तो मेरे हुजरे में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए, फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन हुए, तो मैं जाया करती थी। फरमाती हैं जो फारूक आजम दफन हुए उसके बाद मैं हुजरे में बगैर पर्दे के ना गई, मैं बगैर पर्दे के न गई, इसलिए कि आका मेरे खामिन थे, सिद्दीक मेरा बाप था, फारूक आजम गैर थे और गैरत वाला जवान था, इसलिए मैं अपने हुजरे में बगैर पर्दे के इसलिए कभी ना गई कि मुझे फारूक आजम से शर्म आती थी। आयशा सिद्दीका कब्र वालों से हया करती थी। और आजकल ये टेलीविजन पे नाचने वाली VCR की लानत ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो ये बात, चलाओ घर घर में VCR, अगर मरते वक्त तुम्हें कलमा मिल जाए तो हमें कहना। तुमने खुदा बोले घरों में बदमाशी फैला दी, लानत फैला दी, अल्लाह तबारक व तआला की सारा दिन कंजरियों की आवाज आती है, लानत बरसती है। कुरान पढ़ते हुए फांसी लगती है, दुरूद पाक पढ़ते हुए तुम्हें नाग लड़ता है। नमाज घर का घर नहीं पढ़ता, गाना बजाना बदमाशी हरामखोरी ये मुसलमानों के घर है। आज अगर कोई मुसलमान हुक्मरां होता फिर पता चलता कि इस्लाम क्या होता है और ईमान क्या होता है। ये तो शुक्र करो, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, हाँ जैसे हम हैं ऐसे हमारे हुक्मरां। वो एक चिचड़ा था ना, जुबान से तोतला बोलता था, उसकी हुई शादी, वो खुदा की कुदरत किसी ने चिचड़ी मत्थे मार दी। अब शाम को जो इकट्ठे हुए वो उससे शर्माए, वो उससे शर्माए, वो सब